Delhi, a city with powerful historic traditions, a city of influences, of magnificent monuments dominating the skyline, a city that's 100 years old, a city that evokes the nostalgia of history and the grit of our democracy. This Republic Day, the imposing sandstone edifice of Rashtrapati Bhavan, the iconic building that has stood witness as a young nation made history. And today it plays host to perhaps some of its youngest visitors. Very excited, a bit nervous. मुझे कभी वो नहीं हुआ था कि मैं आऊंगी. पहले कभी नहीं आई और मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रेसिडेंट से मिलने की. वो पहले टीवी पे देखा इतने दूर से, आज इतने पास से देखेंगे. All here to commemorate the day India became a sovereign state. A day at the Rashtrapati Bhavan with the President of India. पहली बार आज मिला हूँ मैं प्रेसिडेंट से मैं, क्योंकि बहुत मुझको खुशी है. I'm gonna really cherish it forever. Their curious eyes look around, wanting to soak in every moment. They come from different corners of the country. Their aspirations, dreams, struggles, all reflected in their own unique idea of India. Amidst the splendor and grandeur of Ashoka Hall, India's future is face to face with India's president. Questions? Well, they're simply tumbling out. For the first time meeting the President of India, I have a lot of questions in my mind, a lot of doubts. I really want to ask her a lot of things. They bring with them cards and letters and experiences of life so far. They are eager to know more about her flight in a Sukhoi, her Vision 2020, and most importantly, about breaking the gender barrier. You're not nervous? No. Hello children, how are you? A very good morning to all of you. So you have come from which place? Oh, good. क्या पढ़ना चाह रही हो? डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है. तो बहुत पैसा कमाओगी या गरीबों को मुफ्त में दोगी दवा? कब आओगे? स्कूल कब आओगे? क्वेश्चन. आपने इनवाइट किया है तो आ जाएंगे. खूब पढ़ना, खूब पढ़ना है. ऐसे जीवन में भी बहुत ऊंचा चढ़ना है आपको, है ना? अच्छे काम करना है. मणिपुर, बहुत अच्छा लग रहा है. All the best, all the best to all of you. Hello and welcome to this Republic Day special. We are calling it All the President's Children. India today is a proud 62-year-old republic, or should we say young republic. On this very important and momentous day, we are with India's young, India's future. They come from different parts of the country and they're all here to pose their questions to the President, Pratibha Patil. We are also truly privileged to be here at the Ashoka Hall in Rashtrapati Bhavan as the capital completes its centenary. Yes, it's going to be a unique interaction over the next 60 minutes as these children get to be one-on-one with their president. Thank you very much, Madam President, for agreeing to host us at the Ashoka Hall. I'm sure Ashoka Hall hasn't really played host to such young kids before. Let me take the first question from a young girl who's actually very true to her name. Her name is Beauty. Pehla sawal. मैम, आप भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने पर कैसा महसूस करती हैं? मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं का गौरव है, ये महिलाओं का महत्व, उनका क्या रोल है सोसाइटी में, ये जाना गया है, उसका रिकग्निशन है.
और ये बात तो सही है कि पहली प्रेसिडेंट होने का मान मिला, ये बहुत इंडीड बहुत सम्मान की बात है। Madam, was it ever about breaking the gender barrier when you got to know of the news that you would be the next president of India? I didn't expect that. I thought that, oh, this is such a great responsibility now coming to me and what I should do. And then at that time I decided that this is a great honor, not only to me, but the women of India, and I must serve the country with utmost loyalty, sincerity, and hard work. Since we've concentrated too much on women at the first, I think I'll give the second question also to a young girl. Go ahead. Ma'am, it is a moment of pride for the women of the country to see the First Lady President of India receiving a salute from the Inter-Services Guard of Honor at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. How was your journey, ma'am, from being the First Lady Governor of Rajasthan to the First Lady President of India? As I said, this is a great honor done to the womanhood of India. But then when it comes to performing your duties, it's not question of a man or a woman. You are the head of the state and you have to discharge all your responsibility as any head of the state is supposed to do that. And therefore, I took all those responsibilities to see that even as the Supreme Commander of our three forces, I perform my duties which are befitting those responsibilities. Okay, the next question is from Anu. Go ahead. मैम, राष्ट्रपति बनने के बाद आपको देश में कौन सी चीज़ पसंद आई और कौन सी चीज़ नापसंद आई? मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि मैं यहाँ आने के बाद देश के अलग अलग हिस्से में जाके और मैं सबसे बात करती हूँ, मैं मिलती हूँ, मैं हमारे भाइयों से मिलती हूँ, बहनों से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ और सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सब जानने का मौका मिलता है। कुछ इंटरेक्शन हो सकती है उनसे, तो पूरे देश से हमारा संपर्क बन जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा नहीं लगता है वो ये है कि टाइट सिक्योरिटी, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इतनी ना हो तो अच्छा है, मगर वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो तो करेंगे ही, तो उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। Let's take the next question. I think the next question is from Dhairya. Yes, you have a mic. Go ahead. Ma'am, first of all, it's an honor to meet you. And my question to you is, have you ever felt a little helpless about your position as a nominal head of the state? It is, you see, a constitutional post, and all the duties, responsibilities and functions go along with that. So you have to perform that with all due care and attention. So there is no question of feeling a sort that you have said, but then you see, one can always do justice to the responsibility and the post to which one is called upon to perform. And yes, the Constitution does provide for separation of powers. So she's the head of state, and we have a Prime Minister who takes care of the federal government. As we told you, Madam President, we have a whole lot of questions, not just from students here, but also from students all over the country. This next batch of students are from Chandigarh, and two girls who want to ask you questions. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप महिला राष्ट्रपति होने के नाते उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो अपने घर में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमेशा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि लड़की को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी इस विषय के बारे में क्या राय है? आपने इस विषय के बारे में कौन-कौन से कदम उठाए हैं और आप लोगों को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं? लड़कियों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये सहना उनके लिए एक दुर्बलता है, इसलिए जब उनके मन में ये विश्वास हो जाएगा
कि वे खुद का रक्षण कर सकती है और खुद के बल पर आगे बढ़ सकती है, और अत्याचार को उसको नहीं सहना है तो उसको आत्मबल मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आत्मबल बढ़ाना चाहिए। अपने स्कूल में जाके जो बड़े हैं, टीचर्स हैं, बाकी उन लोगों से बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ये जो कुप्रथाएं हैं, चाहे दहेज हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल विवाह हो, नशाखोरी हो, ये जो हमारे समाज में बहुत ही इविल्स है, इनको हमको दूर करना है और सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि ये जो बातें हैं, ये जो गलत चीज़ें हैं समाज में से, ये हमको हटाना है सबको मिलकर। मेरे ख्याल से इस उत्तर के साथ आपने दोनों लड़कियों का जवाब दे दिया है, लेकिन एक शो ऑफ हैंड्स हो जाए बच्चों से। इतनी सारी लड़कियां हैं, आप क्या सब राष्ट्रपति से सहमत हैं कि हम लड़कियों को, हम महिलाओं को भी उतना ही उठना होगा जितना हम चाहते हैं कि मर्द ये सब करना बंद करें? दिखाइए, उठाइए अपने हाथ जो कहते हैं ये सब सही है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं को हिम्मत जुटाना चाहिए और अपने बल पे खड़े होके किसी बुरी चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगला सवाल लेने से पहले मैं इनसे जानना चाहूँगी, ये सलाम बालक ट्रस्ट से हैं और आप सलाम बालक ट्रस्ट पर क्यों आई थी? मैं घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी और मैं एक बैड घर में रहती थी जहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं था, और यहाँ आके मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ सलाम बालक ट्रस्ट में, और एक उम्मीद उठती है कि हाँ मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँगी। अब आई थिंक आपके लिए एक तालियां बजानी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो जब आप घर से निकली, मैडम प्रेसिडेंट को बताइए, आप जब घर से निकली तो आपके घर वालों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को यहाँ पे खुद से डाला है। वो भी जानते थे कि मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। टेक योर क्वेश्चन। मैम, जब आप छोटे थे तब से आपने सोचा था कि आप बड़े होकर प्रेसिडेंट बनोगे? ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन एक बात है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहती हो। अब छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या बन भी सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि क्या बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकती है, गवर्नर बन सकती है। तो फिर मैंने पूछा कि ये दोनों में से बड़ा कौन होता है? उन्होंने कहा गवर्नर बड़ा होता है। फिर कहा मैं गवर्नर बनना चाहती हूँ। तो जब मैं पहली बार गवर्नर बनी तो सबसे पहले मुझे पिताजी की याद आई कि अगर वो होते तो बहुत खुश होते। बहुत बच्चे बिजनौर से ही नहीं पूरे देश से जानना चाहते हैं आपकी जो फ्लाइट थी सुखोई पर बैटल टैंक में, और जो आप नेवल वॉरशिप पर गई थी, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आइए बिजनौर से अगले सवाल देखते हैं। आप सुखोई प्लेन में बैठी थी तो आपको कैसा लगा था? हमें अच्छा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति एक औरत है। हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर ऐसा बन सकते हैं। मैं राष्ट्रपति जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो छोटे थे तो उन्हें पढ़ना पसंद था क्या? कि जब वो छोटे थे उन्हें पढ़ना पसंद था कि नहीं? आपको शायद पहला सवाल यही लेना चाहिए क्योंकि सब बच्चे यही जानना चाहते हैं। मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ना पसंद था, मगर मैथमेटिक्स मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। वो सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, किसी को सीखने में देरी लगती है। लेकिन ये मुझे इसलिए भी मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता था, इसलिए कि हमारी जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैं एक बार होमवर्क करके नहीं गई तो उन्होंने कहा आगे हाथ बढ़ाओ, और ज़ोर से हमारे हाथ पर उन्होंने स्केल ज़ोर से मार दी तो पूरा हाथ लाल हो गया। तब से मैं मैथमेटिक्स से डरने लग गई। तब मैं समझती हूँ कि इसलिए हमारे मैथमेटिक्स के टीचर जो है वो बच्चों के साथ इस तरह से पेश आए कि वो बच्चों को इसमें सीखने में रुचि हो, ना कि डर लगे। इस क्वेश्चन पर बच्चों का एक शो ऑफ हैंड्स हो जाए, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है? वो बहुत से, मेरी मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी है। और कितनों की टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है मैथमेटिक्स की? कोई अपनी टीचर के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपकी टीचर स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कोई टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आई एम होपिंग कि राष्ट्रपति जी ने जो आपकी टीचर्स के लिए संदेश दिया है वो आपकी टीचर्स भी सुन रही होंगी और आपको जल्दी से सब मैथमेटिक्स समझ आए। जो बाकी के सवाल थे वो थे आपकी सुखोई की फ़्लाइट को लेकर कि वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों पे बहुत एक्साइटमेंट था कि सुखोई जा रही हैं, कुछ थोड़ा डर भी था, ये था कि सुखोई जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा।
मुझे बल्कि मैं देख रही थी कि मैं कब वो उड़ान भरूं। और जब मैं गई तो सुखोई में बैठी, सारा उन्होंने वो जो भी करना था, जो पहनने थे कपड़े, GI सूट पहना था, वो हेलमेट लगाना, ये सब करवा दिया। फिर मैं जाके बैठी और फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई पंछी होता है उसके पर होते हैं, ऐसे पर से मैं ज़ोर से आकाश में उड़ रही हूँ और जैसे कि आकाश छू के मैं वापस आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही मज़ा आया। Yes, you want. Ma'am, you are the role model to many women. Ma'am, which woman is your role model, ma'am? I always feel that those women who fought shoulder to shoulder along with their